Hi dear friends, I Dharmendra Soni welcome you to my YouTube channel PDS Classes. In this video, we are going to discuss the first chapter of economics, that is the story of Palampur. Before moving forward, I request all of you to please subscribe my channel and like the videos. Let us first talk about the introduction of Palampur. Palampur is a hypothetical village. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इट इज एन इमेजिनरी विलेज। ये कोई रियल गांव नहीं है, इसका नाम दिया गया है पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी दैट इज प्रैक्टिस्ड इन पालमपुर। एक्सेप्ट फार्मिंग देयर आर सम अदर एक्टिविटीज लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट। दे आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल। ये इसके लिए याद रखना है बिकॉज थर्ड पॉइंट इज इंक्लूडेड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। नाउ पालमपुर इज कनेक्टेड विद द टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। पास में एक गांव है, एक बड़ा सा गांव जिसका नाम है रायगंज। ओके, इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। इसके अलावा पालमपुर इज कनेक्टेड टू शाहपुर। शाहपुर इज अ स्मॉल टाउन। Palampur has certain connection with these two places, तो इनके नाम आपको throughout the chapter याद रखने हैं। Palampur has 2 primary schools and there is 1 high school. There is 1 primary health center that is run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. So overall you have come to know what are the economic activities conducted in Palampur. Second thing, you have come to know about the connection of Palampur with the nearby villages and towns. Then you have come to know about educational facilities, then medical facility. Generally गाँवों में ये चीज़ें होती है. That's why from the perspective of village, a small introduction has been given to you. Now we talk about the land and population distribution in Palampur. दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. Generally you are asked how land is distributed in Palampur. Let us look at the data. The total number of families in Palampur is 450. 1/3 families, 1/3 अगर 450 का निकालते हैं तो 150 यानी 150 आता है. They are Dalit. They do not have any land. That's why we call them landless. आगे आपको पता चलेगा कि उनका काम है that they provide labor on the agricultural farm. 240 families ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड साइज है. That's why we call them small farmer. There are 60 families which form medium and large farmer. Medium farmers have more than 2 hectares of land, but there are some large farmers who have 10 hectares of land. लगभग उनके पास 10 hectares से ज़्यादा ज़मीन है. तो once again revise, 450 total family, 150 are Dalit. There are 240 families which have less than 2 hectare of land. Then you have to divide the remaining 60 families into 2 parts, those who have 10 hectare plus land and those who have 10 hectare plus land. This is the population distribution and land distribution in Palampur. Let us move to next slide. Now we are going to talk about the factors of production. Dear students, you have to remember this question generally comes in long answer type question. सबसे पहले आपको याद रखना है what is the definition of production. Production का मतलब क्या होता है? Production means making goods and services that a person need. The following are the factors of production. सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए लैंड. लैंड इज द बेसिक नेचुरल रिसोर्स ऑन विच प्रोडक्शन इज डन. आपको ये ध्यान रखना है लैंड इज फिक्स्ड, इसे इंक्रीज नहीं किया जा सकता है. दैट्स व्हाई वी कैन से लैंड इज फिक्स्ड.
The second factor of production is labor. It means the people who work. They can vary from manual labor, skilled labor, unskilled labor, educated labor and uneducated labor. जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इन सभी तरीके के लेबर की ज़रूरत रहती है. मैनुअल हाथ से काम करने वाले, स्किल टैलेंटेड, अनस्किल कम टैलेंट वाले, एजुकेटेड पढ़े लिखे, अनपढ़, इनकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है. सो दे फॉर्म लेबर इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. The third is physical capital. Physical capital are the variety of the inputs that are required at the every stage of production. It has two types. यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में आता है. जनरली इट इज़ ऑफ 3 marks. What are the two types of physical capital? Let us talk about them. Fixed capital first. फिक्स कैपिटल उस तरीके की कैपिटल होती है जिसको मूव करना पॉसिबल नहीं होता है. जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, इनको आपने एक बार सेटअप कर दिया, देन दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो एग्जाम्पल हो गए टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल. दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर मैनी ईयर्स. एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, चलती ही रहेगी. दैट्स व्हाई वी कॉल देम फिक्स्ड कैपिटल. The second part of physical capital is working capital, the raw materials and money in hand. ये दो इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं. They are called working capital. Raw material is the base of production. बार बार आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू होगी, चलेगी, वो रॉ मटेरियल से चलेगी. Where money is needed to buy the raw material, tools and machinery. तो इस तरीके से हमने देखा कि फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं. एक जो बार बार मूवेबल नहीं होती है एंड द अदर इज देयर दैट इज नीडेड टू बाय ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग द रॉ मटेरियल. द लास्ट पार्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इट रेफर्स फॉर द नॉलेज एंड एंटरप्राइज दैट इज रिक्वायर्ड टू यूज लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है. Okay, I hope you were able to understand what are the factors of production. Let us move to next slide. Land is fixed. ऐसा कहा जाता है कि पालमपुर में लैंड एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है. लैंड अंडर कल्टीवेशन स्पेशली. Why? What is the reason behind it? Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land अंडर कल्टीवेशन. ऐसा क्यों है? बिकॉज फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर विलेज. इवन सम ऑफ द वेस्ट लैंड, ऐसी जमीन जो वेस्ट लैंड थी, बाय द एफर्ट ऑफ द फार्मर इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. तो कुल मिला के जो बंजर जमीन थी वो भी खेती के काम में आ गई. There is no chance to increase the land under cultivation because land is fixed. जितना एरिया था आपने पूरा यूटिलाइज कर दिया. यहाँ तक कि जो वेस्ट लैंड थी that has also been utilized for agriculture. तो लैंड तो पैदा नहीं की जा सकती. It is fixed. That's why since 1960 there has been no increase in the land area under cultivation. Dear friends, it is again a question of 3 marks. Let us move to our next slide. Is there a way one can grow more from the same land? क्या ऐसा कोई तरीका है? सपोज करो कि ये आपका फार्म हाउस है and you are taking total production of 1 lakh rupees from this land. क्या कोई तरीका है कि आपकी इनकम भी इंक्रीज हो और आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए? What you can do for this purpose? This is asked. The farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur. It is due to scientific methods. Yes, वो सिर्फ मॉनसून पर डिपेंड नहीं है दोस्तों. They are using the means of irrigation. The arrival of electricity transformed the system of irrigation.
यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज्ड कर दिया है द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अर्लियर पर्सियन व्हील्स वर देयर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट ए स्मॉल फील्ड, बट नाउ द फार्मर्स आर यूजिंग इलेक्ट्रिक रन पंप टू इरिगेट द फील्ड्स। इन पंप का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब नॉन रेनी सीजन होगी, जब बारिश नहीं हो रही होती है, तब भी वो लोग अपनी फसलों को पानी दे पाते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स दे विल टेक द खरीफ क्रॉप, दे विल आल्सो टेक द रबी क्रॉप, and in between the two crop they are also able to take their third crop। तीन फसलें ले रहे हैं। Next, if you want to increase the production, you have to use high yielding variety of seeds। मे बी ये वर्ड आपके लिए नया हो। जब एक सपोज करो गेहूं का पौधा है, इससे आपको 100 ग्राम गेहूं मिलता है। अब आपको एक ऐसा बीज दिया जाता है जिस एक पौधे से आप 300 ग्राम गेहूं ले सकते हैं। इसका मतलब पर प्लांट या पर सीड अगर मैं कहूं तो आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। ऐसे जो बीज होते हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहलाते हैं। इनके साथ केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है, एंड दे आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। इस तरीके से पालमपुर के किसानों ने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। इट इज अगेन अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जितने भी आइडियाज मिले हैं जिनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है, ओके, ये सब पॉसिबल हो पाया है ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। एक पिक्चर लगा हुआ है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिफरेंट मोड्स ऑफ इरिगेशन, मशीनरी, इन सब को यूज करते हैं एंड द ओवरऑल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट। द फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1960s। 1960s का मतलब होता है बिटवीन 1961 to 1969। That's why we write it as 1960s। First, it took place in the cultivation of wheat and rice। It is a 1 mark question। Green Revolution को किन 2 क्रॉप में शुरू किया गया? And the answer is wheat and rice। What is used under Green Revolution? HYVS, high yielding varieties of seeds which give more production on a single plant, they were used at that time। Fourth point is, it says modern irrigation methods, chemical fertilizers, pesticides, they were used to get more production। अब ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ? तो योर आंसर शुड बी पंजाब, योर आंसर शुड बी हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये सबसे पहले स्टेट थे टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया, और आपको सरप्राइज होगा दैट दे सक्सीडेड इन दैट। तो इन सब वजह से इंडिया में ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया एंड हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। SELF, सेल्फ, SUFFICIENT, वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसकी जरूरत थी और हमने ऐसा किया। तो ये एक तरीका था जिससे इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। रिमेंबर इट, इट इज आस्क्ड इन शॉर्ट नोट्स। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ लॉस भी होता है। अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू रखते हो तो आपको कहां कहां सफर होना पड़ सकता है। और व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग HYV? उसमें क्या क्या कमियां रहती है? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को जब यूज किया जाता है तो इनके साथ कुछ और भी यूज करना पड़ता है। लेट अस सी व्हाट आर दे, व्हाट इज द हार्म। The modern farming methods have overused the natural resource base। इसमें natural resource base जो होता है वो होता है soil।
एक तरीके से कहूँ तो यू आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द सॉइल, शोषण कर रहे हो आप। बार बार अगर उसको यूज करोगे तो मिनरल्स तो कम पड़ने ही हैं। In many areas, green revolution has led to loss of soil fertility. Loss of soil fertility का मतलब होता है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है, प्रोडक्शन पावर होता है, वो कम हो जाता है। As we are using chemical fertilizers. Fertilizers एक तरीके का खाद या मैन्योर होता है, but it is not organic, it is inorganic. ये inorganic होता है, केमिकल बेस्ड होता है। Now for growing more crops you are using groundwater from the tube well, so the water table has reduced. इसको इस तरीके से समझिए, ये कुआं है, पहले यहाँ 30 फीट की डिस्टेंस पे पानी मिल जाता था। अब बार बार आप तो पानी को बाहर निकाल रहे हो, धीरे धीरे जो पानी का लेवल यहाँ पे था it will go down and it will reach to 100 feet, 200 feet. In some areas it has reached 500 feet. इतना गहरा पानी का लेवल चला गया है। That is called reducing the water table. The next point, this is point number 4. The soil fertility and groundwater, if once destroyed, it is very difficult to restore them. अगर एक बार ये सब कुछ खत्म हो गया तो इसको रिन्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। देन योर लैंड विल बी ऑफ नो यूज, आपकी जमीन कोई काम की नहीं रहेगी। तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा देता है पर इसके लॉसेस भी हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ हाउ लेबर इज अरेंज्ड इन पालमपुर। अब आपको पता ही है कि वहाँ पे स्मॉल फार्मर भी है, वहाँ पर मीडियम फार्मर भी है और वहाँ पर लार्ज फार्मर भी है। ये तीनों तरीके के फार्मर हैं। इनको अपने फार्म हाउस पर काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत रहती है। तो ये लेबर मजदूर कौन है, फिर कहाँ से आएंगे? लेट अस सी। स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, दे वर्क विद देयर फैमिलीज ऑन देयर फार्म्स, दे डू नॉट हायर लेबर। वो किसी लेबर को लाते ही नहीं है, खुद ही काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर, वो क्या करते हैं? दैट दे हायर द लेबर, क्योंकि उनकी लैंड साइज बड़ी है। लेबर कौन है फिर? मोस्ट ऑफ द लेबर्स आर लैंडलेस, उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है। दे आर गिवन डेली वेजेस। जनरली मैंने आपको बताया था कि 150 फैमिलीज हैं, they are Dalits and they used to provide labor on these farm houses. इनमें से कुछ लोग यहाँ पर लेबर प्रोवाइड करते हैं। Let us move to next slide. Arranging capital in Palampur for farmers. Capital का मतलब होता है खेती करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। स्मॉल फार्मर कहाँ से लाएगा, मीडियम और लार्ज फार्मर कहाँ से लाएगा। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर। छोटे किसान हैं तो बड़े किसान के पास जाएंगे पैसा लेने, या दे गो टू मनी लेंडर्स। गाँवों में कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है ब्याज पर पैसा उधार देना। दे आर कॉल्ड मनी लेंडर्स, उनके पास जाते हैं। नाउ उनका नुकसान है कि दे हैव टू पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम बैंक से पैसा लेते हैं वी हैव टू पे लेस इंटरेस्ट, लेकिन जब आप मनी लेंडर के पास जाओगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का नुकसान होता है बेचारे इन स्मॉल फार्मर को। मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या करते हैं? द मीडियम एंड लार्ज फार्मर दे यूज देयर ओवन सेविंग। उनके पास तो खेती की ज़मीन अच्छी है तो पैसे को बचा कर रखते हैं और वह बचा हुआ पैसा वो खेती में काम में लेते हैं। टू बाय मशीन्स, टू बाय अदर एग्रीकल्चरल इनपुट। तो इस तरीके से कैपिटल अरेंज होती है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल फार्मर को नुकसान क्या होता है कि उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न द मनी। जब ब्याज ही ज़्यादा लग रहा है तो आपने जो पैसा उधार लिया वो कैसे चुकाओगे? दिस इज द प्रॉब्लम।
फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन पालमपुर। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज फार्मिंग एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नॉन फार्मिंग। ये दोनों याद रखने हैं आपको। फार्मिंग एक्टिविटी में जो क्रॉप ग्रो होती है, इट इज गिवन इन पिक्चर। वीट, गेहूं, बाजरा, सुगर केन और पोटैटो, ये 4 क्रॉप ग्रो करते हैं। देखते हैं कैसे ग्रो करते हैं। फर्स्ट क्रॉप इज खरीफ क्रॉप। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो आइदर जवार और बाजरा, दोनों ग्रो करते हैं कोई कोई। इट इज यूज्ड एज कैटल फीड। कैटल फीड का मतलब होता है इनको जानवरों को खिला दिया जाता है, वो जानवर जो बदले में दूध देते हैं स्पेशली। बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, जब उन्होंने खरीफ क्रॉप पहले ही कट कर ली तो ये महीने खाली है, तो इन महीनों में दे ग्रो पोटैटो। पोटैटो इट मीन्स वो आलू ग्रो करते हैं। रबी क्रॉप्स, इन विंटर सीजन दे ग्रो व्हीट एंड सुगर केन। व्हीट का मतलब गेहूं, सुगर केन यू नो इट वेरी वेल। द सरप्लस व्हीट, सरप्लस का मतलब होता है जितना यूज करना है उसके अलावा जो बच गया है, दैट इज नोन एज सरप्लस। इट इज सोल्ड एट रायगंज। मैंने पहले भी कहा था रायगंज का नाम याद रखना है, ये एक बिग विलेज है। सुगर केन को आइदर इन इट्स रॉ फॉर्म, रॉ फॉर्म का मतलब होता है कच्चा, जैसे आपने कट किया है वैसे ही, या जैगरी बनाकर। जैगरी का मतलब होता है गुड़ बनाकर इसको पास के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है शाहपुर, वहाँ इसको बेच दिया जाता है। तो व्हीट बेचा रायगंज में, शुगर केन को 2 फॉर्म में, या तो रॉ फॉर्म में या गुड़ बनाकर शाहपुर बेच दिया जाता है। तो ये है फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो अब आपको नॉन फार्मिंग भी याद करनी पड़ेगी। सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, जो खेती से न जुड़ी हुई हो, दे आर नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। डेयरी, फर्स्ट थिंग, द पीपल ऑफ पालमपुर मिल्क बफेलोज, भैंसों से दूध निकालते हैं। जवार, बाजरा एंड ग्रास, दे आर गिवन टू बफेलोज एज कैटल फीड, यानी खिलाया जाता है। अब मिल्क आया तो उसका क्या करेंगे? द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। रायगंज नाम के एक बिग विलेज में दूध को बेच दिया जाता है। तो रायगंज में क्या है देखिए, यहाँ पर 2 ट्रेडर्स ने, व्यापारियों ने, जो शाहपुर के थे, उन्होंने मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर लगाया है। एक ऐसी जगह जहाँ पर मिल्क को बड़े बड़े कैन में स्टोर किया जाता है एंड इट इज केप्ट कोल्ड, ठंडा रखा जाता है ताकि सुबह इसको बेचने वाले ले जाएं या इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वो प्रोसेस कहलाता है मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। तो दूध निकाला, रायगंज बेच दिया। ये पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्केल पे थोड़ी बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज चलती है। 50 people of this village are engaged in manufacturing on agricultural farm or at home। या तो वो घर पे काम करते हैं या अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पर काम करते हैं। Now here the production is done with the help of family members. Farmers from sugarcane make jaggery। शुगर कैन को प्रोसेस करके वो गुड़ बनाते हैं और उसे शाहपुर में बेच सकते हैं। ये कहलाती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नाउ शॉपकीपिंग, कुछ लोग दुकानदार भी हैं। शॉपकीपर्स सेल्स राइस, व्हीट, टूथपेस्ट, सोप एक्सेट्रा, इन चीज़ों को बेचते हैं। अब लाते कहाँ से हैं? दे बाय दीज थिंग्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ से लाते हैं? होलसेल मार्केट से। दीज शॉप्स आर मोस्टली क्लोज टू बस स्टॉप। बस स्टॉप के पास थोड़ी हसल एंड बसल, चहल पहल रहती है, तो बायर्स भी मिल जाते हैं। सो दीज शॉप्स आर सेट अप नियर बस स्टॉप। तो शॉपकीपिंग हो गई। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू टेक द पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, बुलॉक कार्ट्स are in transport service in Palampur. They are used for transporting goods and people. लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और सामान को भी इधर उधर ले जाने का काम करते हैं। तो छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट के साधन भी है यहाँ पर। तो ये है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। आपको इसे याद रखना है। Dear students, it is the end of the lesson. I hope you were able to understand. Thank you. जय हिंद।